میرے والد صاحب ایک جاگیردار تھے۔ انہوں نے مجھے بڑے ناز و نام سے پالا کیونکہ میں 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور سب سے چھوٹی تھی۔ میں نے شان و شوکت میں آنکھ کھولی، ہر طرف دولت کے انبار دیکھے، نوکروں کو غلاموں کی طرح اشاروں پر حکم بجا لاتے دیکھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، جس کی دیواریں بھی خوب اونچی تھیں۔ ذرا بڑی ہوئی تو اپنی عمر کی لڑکیوں کو اسکول جاتے دیکھتی۔ اسکول ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ میرے دل میں بھی اسکول جانے کی امنگ جاگی تھی۔ اس خواہش کا اظہار والدہ سے کیا۔ پہلے تو وہ نہ مانی، لیکن پھر کچھ سوچ کر بابا جان سے بات کی۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا، کہا کہ ہمارے گھرانے کی لڑکیاں اسکول پڑھنے نہیں جاتی، میں گھر پر استانی کا انتظام کر دوں گا۔ میں بھی ضد پر اڑ گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیمار پڑ گئی تو باپ کا دل نرم ہوا اور انہوں نے مجھے اسکول بھیجنے کی اجازت دے دی۔ 5ویں جماعت اچھے نمبروں سے پاس کی۔ 6ٹھی جماعت سے ماں نے میرے ساتھ نوکرانی کو بھیجنا شروع کر دیا، حالانکہ اسکول چند قدم پر تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، میں میٹرک میں پہنچ گئی اور لڑکیاں اکیلی اسکول آ جاتیں، مگر میرے ساتھ خادمہ ہوتی، وہی اسکول پہنچاتی اور لینے بھی وقت پر آ جاتی۔ ہم پیدل جاتے تھے، رستے میں اپنی ملازمہ سے باتیں کرتی جاتی۔ سہیلیاں تو یادیں ماضی بن گئی تھیں۔ مجھے اب میٹرک میں اعلیٰ درجے پر پاس ہونے سے کام تھا۔ ایک دن اسکول جا رہی تھی کہ سڑک کنارے درخت کے نیچے 4 نوجوانوں کو بیٹھے دیکھا جو بڑے انہماک سے تاش کھیل رہے تھے۔ جو ہی ہم ان کے نزدیک سے گزرے، ان میں سے 3 نے میری جانب دیکھا، لیکن چوتھے نے گردن جھکا لی۔ مجھے ان لوگوں کا اس طرح گھورنا برا لگا۔ وہ نوجوان جس نے سر نہ اٹھایا تھا کافی خوبصورت اور اچھے گھر کا لگ رہا تھا، جبکہ باقی تینوں تو جیسے فقیر لگے۔ خیر، ہم خاموشی سے وہاں سے گزر گئے۔ اگلے روز پھر وہی چوکڑی نظر آئی۔ پہلے کی طرح تینوں چوکنے ہو کر ہماری طرف دیکھنے لگے اور چوتھے نے سر نہ اٹھایا۔ یہ عجیب سا لگا، وہ بھی تو انہی لوگوں کا ساتھی تھا، پھر ان سے مختلف کیوں تھا؟ ہم روزانہ وہاں سے گزرتے اور روزانہ یہی ہوتا۔ 3 ہمیں گھورتے اور چوتھا نظریں نیچے سر جھکائے رہتا۔ وہ مجھے بالکل بھی نہ دیکھتا۔ مجھے اس خوبصورت نوجوان کے بارے میں تجسس رہنے لگا کہ یہ کون اور کہاں رہتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی خادمہ سے کہا، کوثر اماں، ایک بات کہنی ہے۔ پھر اس کے وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے کہا، میں جاننا چاہتی ہوں یہ جو نوجوان اپنا سر جھکائے رکھتا ہے یہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ کیا تم معلوم کر کے مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ بولی، ہاں کیوں نہیں، مگر اسکول آ گیا ہے، آپ اندر جائیے، چھٹی کے وقت لینے آؤں گی تو رستے میں بتا دوں گی۔ میں چھٹی تک بے چین رہی۔ دماغ میں بس ایک ہی بات سما گئی کہ آخر یہ ہے کون، کس کا بیٹا ہے، کیا نام ہے اور کہاں رہتا ہے۔ خدا جانے کیوں مجھے اس کے بارے میں ساری معلومات لینے میں اس قدر دلچسپی ہو گئی تھی۔ جب چھٹی ہوئی تو میں تیزی سے گیٹ پر پہنچی۔ کوثر اماں مجھے لینے آئی تھی۔ جو ہی ہم سڑک پر آئے، میں نے پہلا سوال پوچھا، کیا اس کا پتہ کیا تھا؟ ہاں بتاتی ہوں، ذرا دم لینے دو۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھی تو خادمہ نے بات شروع کی، بیٹی وہ ایک بڑھئی کا بیٹا ہے اور اس کا نام نور الدین عرف نورو ہے۔ اس کے باپ کا نام خیر دین تھا۔ یہ بہت غریب لوگ ہیں۔ ہوا یہ کہ نورو تمہارے والد کے پرانے دوست ملک شفاعت کی بیٹی حور بی بی کو دیکھتا تھا جب وہ راہ سے گزرتی تھی۔ اس بات کا پتہ جب اس کے والد کو ہوا تو اس نے اس کی شکایت تمہارے والد سے کر دی کہ تمہارے گاؤں کا لڑکا میری لڑکی کو میری نظروں سے دیکھتا ہے۔ خان صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے خیر دین اور اس کی بیوی کو گاؤں بدر کر دیا اور ان کے گھر کو آگ لگوا دی۔ وہ بیچارے نہ جانے کہاں کوچ کر گئے۔ لیکن کچھ دنوں بعد تمہارے والد کی اجازت سے نور دین واپس آ گیا اور اپنے ایک دوست کے گھر رہنے لگا۔ اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی۔ جب نورو واپس اپنے ماں باپ کے پاس گیا تو پتہ چلا اس کی ماں مر چکی ہے اور باپ رشتہ داروں کے پاس کسی دور کے گاؤں چلا گیا ہے۔ یہ افسردہ ہو کر گاؤں واپس لوٹ آیا۔ اب اسی دوست کے ساتھ رہتا ہے، مگر آپ کے والد نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ اس گاؤں میں صرف اس شرط پر رہ سکتا ہے کہ کبھی نظر اٹھا کر کسی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اگر نظر اٹھا کر دیکھی تو آنکھوں سے ہی نہیں سر سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ تب سے یہ اسی طرح گردن جھکا کر بیٹھتا ہے۔ چونکہ اس کا کوئی نہیں ہے تو اب یہ کہاں جائے گا؟ اسے رہنا تو یہی ہے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ نورو کی کہانی سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آیا اور اپنے والد کی یہ سزا بہت ظالمانہ لگی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس سخت گیر طبیعت کے مالک ہوں گے، کیونکہ سزا کی بھی ایک مدت ہوتی ہے۔ کوئی ساری عمر تو اس طرح سر جھکا کر نہیں جی سکتا۔ جب گھر آئی ساری رات سو نہ سکی۔ اس معصوم نوجوان کا خیال ذہن میں آتا رہا۔
एक दिन मैंने बुखार का बहाना करके स्कूल से छुट्टी कर ली। जब भाई और वालिद शहर चले गए तो अम्मी से अपनी एक क्लास फेलो के घर जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि सुबह तो तुमने कहा कि तुम्हें बुखार है और अब तुम सहेली के घर जाने का पूछ रही हो। मैंने जवाब दिया कि हाँ, अब ठीक हो गई हूँ। मैंने बुखार उतारने वाली गोली खा ली थी। नौकर चाकर ज़मीनों पर काम में लगे हुए थे। फसल का मौसम था। अम्मी ने मेरे इसरार पर मुझे कौसर अम्मा के हमरा भेज दिया। रास्ते में मैंने खादमा से पूछा, कौसर अम्मा, तुम्हें वो जगह मालूम है जहाँ नूरू अपने दोस्त के पास रहता है? वो बोली, हाँ, यहाँ से थोड़े फासले पर तुम्हारी सहेली के घर की तरफ ही है। वहाँ से गुजरेंगे तो बता दूंगी। इस सीधी सादी औरत ने रास्ते से गुजरते हुए इशारे से बता दिया कि वो घर है जहाँ नूरू रहता है। चूँकि गांव में घर नज़दीक होते हैं, लिहाजा वो घर भी बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं था। मैं थोड़ी देर सहेली के पास बैठकर वापस आ गई। अगले दिन स्कूल गई तो देखा इस मखसूस जगह जहाँ ये नौजवान ताश खेलते थे, आज 3 तो मौजूद थे मगर चौथा मौजूद ना था, और वो नूरू था। अगले 3 दिन भी इसी तरह नूरू को गैर मौजूद पाया तो मेरे दिल को घबराहट हुई कि इसे क्या हुआ है। कहीं फिर तो बदकिस्मती ने इसका पीछा नहीं कर लिया। दिल की बेकरारी फिर से बढ़ने लगी, लेकिन अब किससे मालूम करती। आखिर खादमा से कहती तो उसका माथा ठनक जाता कि मुझे आखिर क्या पड़ी है इस मामूली बढ़ई के बेटे की खैरियत दरियाफ्त करने की। लेकिन जब दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो ही गई थी तो फिर इस बारे में तजस्सुस भी लाजमी अमर था, और इस तजस्सुस पर मेरा इख्तियार नहीं था। अम्मा कौसर से जिक्र किया, क्या तुम मालूम कर सकती हो कि नूरू क्यों नहीं आ रहा? अच्छा बेटी, मालूम कर लूँगी। उसने मजबूर सी दबी दबी आवाज़ में जवाब दिया। वो जानती थी मेरे मिजाज को कि अपने सवाल का जवाब लिए बगैर हरगिज़ पीछा न छोड़ूंगी। तभी मेरे सवाल करने पर उसने कहा, मैंने वापसी में रुक कर इन लड़कों से पूछा था, उन्होंने बताया है कि वो बीमार है और घर में पड़ा रहता है। ये सुनकर मुझे और भी दुख हुआ। तमाम रात नूरू की फ़िक्र से नींद ना आई। क्या खबर उसके पास इलाज के लिए रकम ही ना हो, इसी वजह से बग़ैर दवा दारू के पड़ा होगा। उसका दोस्त भी तो इतना अमीर ना था, वो एक निकम्मा लड़का था जो ताश खेलता था या फिर सारा दिन बटेरबाजी करता था। अगले दिन स्कूल जाते हुए मैंने खादमा से कहा, उसके दोस्त से पूछो क्या नूरू को इलाज के लिए रकम की ज़रूरत है। वो मेरी इस बात पर कांप गई और कहने लगी, ज़रूर होगी, वो गरीब है, मगर खुदा रा इस अमर से बाज रहो। अगर आपके वालिद को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। अब मैं किसी से उसके बारे में कुछ ना पूछूंगी। मैं समझ गई इस बूढ़ी पर ज़्यादा दबाव डाला तो वालदा को मेरी शिकायत कर देगी। सो खामोश हो गई, मगर दिल में ठान ली कि इस मजलूम को किसी तरह रकम पहुंचा कर रहूँगी। अब सवाल ये था कि ये रकम इस तक कैसे पहुंचाऊं। अगर इसके दोस्तों को देती तो क्या ज़रूरी था कि वो ये रकम उसको देते। वो खुद ही आपस में बांट लेते और उससे जिक्र तक न करते। बहुत परेशान थी। क्लास में गुमसुम बैठी देखकर मेरी क्लास फेलो अतिया ने, जो कि मेरी सहेली भी थी, पूछा, क्या बात है, क्यों चुप चुप बैठी हो? मैंने अपनी परेशानी बता दी। वो बोली, ये भी कोई बड़ा मसला है। खैर, तुम घर जाते हुए उसके दोस्त का मकान रास्ते में आता है, वहाँ 1 मिनट रुक कर दर बजाना और नूरू को बुलाकर रकम उसे थमा देना। बस थोड़ी सी जुर्रत की ज़रूरत है। मैंने कहा, कौसर अम्मा साथ होगी और वो मुझे ऐसा नहीं करने देगी। अतिया कहने लगी, तो हाफ टाइम में चलते हैं, क्या तुम चलोगी? कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चली चलूँगी। हम टीचर से कोई बहाना कर लेंगे और हाफ टाइम में छुट्टी ले लेंगे। मैं अपनी मुलाजमा से कहूँगी कि वो हाफ टाइम में मुझे लेने आ जाए। वो आ जाएगी तो मैं उसे समझा दूँगी कि अगर टीचर बुलाकर पूछे तो कह देना कि तुम्हारी और मेरी अम्मी ने शहर जाना है और हमें भी उनके साथ जाना है। गर्ज कि मैं उसकी बातों में आ गई। अगले रोज़ मैंने काफ़ी रकम माँ की अलमारी से अपने स्कूल बैग में रख दी और हाफ टाइम में अतिया की मुलाजमा हमें लेने आ गई। टीचर ने उसे बुलाकर पूछा, क्या तुम घर से इनको लेने आई हो? वो बोली, हाँ, दोनों को साथ लेने आई हूँ, दोनों की वालदा ने शहर जाना है। इन दिनों टेलीफोन वगैरह नहीं थे, घर से मुलाजमा लेने आती तो छुट्टी मिल जाती थी। सो हम दोनों को छुट्टी मिल गई और हम अतिया की मुलाजमा के साथ स्कूल से निकले। रास्ते में जब नूरू के दोस्त का घर आया तो मैंने अतिया से कहा, वालदा ने इनको रकम देने को भिजवाई थी, 1 मिनट के लिए वो सामने वाले मकान तक जाना है। वो बोली, तुम जाकर दे आओ, हम यहीं तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मैं तेज़ी से आगे बढ़ी, सड़क पार की और दरवाज़ा खटखटाया। जिसने दरवाज़ा खोला वो नूरू था। उसकी नज़र मेरे जूतों पर थी। मैंने कहा, नूरदीन, सर ऊपर करो। मेरे तहकमाना लहजे पर उसने अपने झुके हुए सर को ऊपर किया और हैरत भरी नज़रों से मुझे देखने लगा।
क्या तुम बीमार हो? उसने गर्दन हिला दी। तो ये लो रुपए इलाज के लिए। वो और ज़्यादा हैरत ज़दा हो गया। आप कौन हैं? मैं मलिक साहब की बेटी हूँ नूरजहाँ, और तुम सिर्फ नूरू। इसी वजह से मेरे बाप ने तुम्हें सज़ा दी है। ऐसी सज़ा के इंसान उम्र भर ऐसी सज़ा नहीं झेल सकता। वो जीते जी मर जाता है, लेकिन मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती। अब जल्दी से ये पैसे पकड़ो, ऐसा ना हो कोई हमें बात करते देख ले। मेरे बाप का नाम सुनकर उसके हाथ खौफ से कांपने लगे और चेहरा पीला पड़ गया। उसने इन्हीं कांपते हाथों से रकम पकड़ ली और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ड्योढ़ी से निकली और भाग कर सड़क पार कर ली। अतिया दांत भरी निगाहों और उसकी मुलाजमा हैरत से मुझे देख रही थी। मुझे अपने घर ले गई और छुट्टी से चंद मिनट पहले दोबारा मेरे साथ स्कूल की तरफ चलने लगी। उसकी मुलाजमा साथ थी। उसने अपनी माँ से कहा कि वो अपनी कापी घर भूल गई थी, वही लेने आई थी और अब वापस स्कूल जाना है। ऐन छुट्टी के वक्त हम दोनों स्कूल के गेट पर थीं। तभी कौसर अम्मा आती दिखाई दी और हम बाहर से ही उनके हमरा घर के सिमत रवाना हो गए। घर आकर मैंने सुकून का सांस लिया कि किसी को पता भी ना चला और मैंने एक नेकी का काम भी कर दिया। अब नूरू अपना इलाज करवा सकेगा। चलो उसकी सज़ा तो ख़त्म ना करवा सकी, लेकिन उसका इलाज तो करवा ही सकती हूँ। अपनी कामयाबी पर मैं खुश थी। समझ रही थी कि किसी को इस अमर की इत्तला नहीं हुई है। खैरियत गुजरी, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। अतिया की खादमा कौसर अम्मा जैसी तहम्मुल वाली औरत न थी। इस कमज़ात ने अतिया से जो वादा किया था कि इस बात का जिक्र ना करेगी, अपने वादे का पालन ना कर सकी और ये बात अतिया की माँ के गोशगुजार कर दी। उन्होंने हमसे तो कुछ ना कहा, लेकिन अगले दिन घर आकर खामोशी से मेरी वालदा के कान में ये बात डाल गई। वालदा ने मुझ पर बिल्कुल भी इस बात को आश्कार ना किया कि इन्हें कुछ मालूम है, मगर उसके बाद नूरू मुस्तकिल ही अपने दोस्तों की चौकड़ी से गुम हो गया। कुछ दिन बाद मेरे दिल को कुरेद लगी कि मालूम करना चाहिए उसकी तबीयत कैसी है और क्या उसने इलाज करवाया है या नहीं। मैंने कौसर अम्मा से इस्तदा की, अम्मा बस आखिरी बार नूरू बेचारे की खैरियत पूछ दो। आखिर वो क्यों इतने दिनों से गायब है? उसे कुछ हो तो नहीं गया? अच्छा बेटी, मगर बस आखिरी बार तुम स्कूल जाओ, वापसी में उनसे पूछती जाऊंगी। मैंने वो दिन स्कूल में बहुत बेचैनी से गुजारा। जब छुट्टी के वक्त खादमा लेने आई तो दौड़कर उसके पास गई। हम स्कूल से निकलकर रास्ते पर आ गए। तभी मैंने कौसर अम्मा से सवाल कर दिया, वो अब कभी नज़र नहीं आएगा बीबी? कौसर अम्मा ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया, वो हमेशा के लिए यहाँ से चला गया है। मगर कहाँ? मालूम नहीं बीबी, मगर तुमने जिस दिन उसको दरवाजे पर जाकर रकम दी थी, उसी दिन से अपनी मौत नज़र आ गई थी। तभी वो अगले रोज़ गायब हो गया। शायद खौफ से खुद ही गांव से चला गया और कहीं रूपोश हो गया, क्योंकि आपकी वालदा ने उसे कहलवाया था कि तुम्हें जो सज़ा मिली है खान की तरफ से, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? ये पैगाम खानम बीबी की तरफ गया था। तभी उसके दोस्त ने उसे कह दिया कि जान की अमान चाहते हो तो मेरा घर छोड़ दो, वरना तुम्हारी वजह से मैं भी मारा जाऊंगा। कौसर अम्मा ने तासुफ से कहा, बेटी इसी वजह से आपको मना करती थी कि आप इस मामले से दूर रहें और किसी से हमदर्दी ना करें। ऐसे लोगों से हमदर्दी करना जो सज़ावार हों, उनकी तकलीफ़ों में इजाफा करना ही होता है। मुझे कौसर अम्मा की बात अजबर हो गई। वालदा के सामने ज़बान खोलने का ये मतलब था कि वो मुझे मैट्रिक भी ना करने देती और स्कूल से हटा लेती। मैंने सब्र से काम लिया और नूरू का ख्याल झटक कर इम्तिहान की तैयारी में मशगूल हो गई। क्योंकि सालाना इम्तिहान नज़दीक था, मैट्रिक के बाद वालदा ने आगे पढ़ाने की हिमायत नहीं। मेरी मंगनी तायाजात से तय थी। उन्होंने मंगनी की रस्म भी करना ज़रूरी ना समझा और शादी की तारीख ले ली। मेरी शादी हो गई तो मैंने नूरू और उसके अंजाम को हरफ़े गलत की मानद जहन से मिटा दिया कि मुझे इस याद को भुलाना ही था। भला याद रखने का हासिल भी क्या था? उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।